morning to each one of you. After completion of classification of elements and periodicity and properties, we are going to start with chemical bonding and molecular structure. For which, first of all, what a bond is. Bond is an association between the two. Taking an example that if an applicant applies for a job, अब उस applicant का interview हुआ और job उसको मिल गया. Now the applicant is working for the company and the company in turn is benefiting the applicant by paying the wages and other benefits which the applicant deserves. In this way they are both bonded to each other. बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दो चीज़ों को आपस में रोप के साथ टाई अप कर दें या एक स्टिक के साथ उनको अटैच कर दें. दैट इज जस्ट एन एसोसिएशन बिटवीन द टू इन विच बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड. जैसे एप्लीकेंट को कंपनी के लिए काम कर रहा है तो वो उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है और इन टर्न कंपनी इज बेनिफिटिंग द एप्लीकेंट बाय प्रोवाइडिंग द वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स. Now here what we are going to do is the chemical bond. What a chemical bond is? It is the attractive force which hold together the constituent particles in a chemical species. कोई भी एक chemical compound बन रहा है तो उसमें जो particles हैं उनको कोई attractive force जो hold करके रखे, उनको आपस में associate करके रखे, that is a chemical bond. Those particles can be atoms, molecules और ions. क्योंकि chemical compound बनना है वो किसी से भी बन सकता है, atoms से भी, molecules से भी, ions से भी. And we know that atoms combine to form molecules and from atoms the ions are formed either by loss or gain of electrons. So by the combination of any of these the chemical species they get formed with the help of attractive forces and they remain held up together because in their association they are benefiting each other. But now from here the question arises, why do atoms combine? जैसे एप्लीकेंट ने अप्लाई किया और कंपनी ने उसे रिक्रूट कर लिया तो इनमें उन दोनों को बेनिफिट था कि जो एप्लीकेंट है उसको सैलरी मिल रही है, अर्निंग हो रही है और इन टर्न कंपनी को बेनिफिट हो रहा है एप्लीकेंट के आइडियाज से कि वो प्रोग्रेस कर रही है. But here if we talk about atoms, if they are lying as it is तो वो ऐसे ही पड़े रहे. What is their need to combine with each other? So to understand that, first of all taking an example of sodium whose atomic number is 11 and electron distribution is 281. Now in this case we say that कि अगर सोडियम का एटम है तो वो ऐसे ही पड़ा रहे, उसको क्या जरूरत है रिएक्ट करने की. And on the other hand, if we take another example of chlorine with atomic number 17 and electronic distribution is 287, then again the question is कि इसको भी क्या जरूरत है किसी के साथ रिएक्ट करने की. The thing is that both of them they are not stabilized. ये स्टेबल कैसे होंगे जब इनकी बाहर वाली शेल कंप्लीट होगी. बाहर वाली शेल कंप्लीट कैसे होगी, जैसे यहाँ भी थर्ड शेल है, यहाँ भी थर्ड शेल है. So both of them they want their outermost shell with 8 electrons. अब ये अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कर सकता है, either by gaining 7 electrons or by the loss of 1 electron. ये अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसकी बाहर वाली शेल ये बन जाएगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो किसी के पास तो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है as compared to lose 7 electrons. Hence, by gaining 1 electron and by losing 1 electron, both of them they acquire a stable configuration. इसलिए इनको आपस में combine होना है. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये Na+ बना लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये Cl- बना लेगा क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया. Now they have become ions and they remain associated with each other. ये एक दूसरे के साथ बंध जाएंगे क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसे तब तक ही देगा जब तक ये इसके साथ अटैच रहेगा और ये भी उसके साथ तब तक ही अटैच रहेगा जब तक ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा ताकि ये एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. That is why the atoms combine. Next question is, why do certain atoms combine but others do not?
अगर हम यहीं से देखें कि अगर एक बार Na+ बन गया तो इसकी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए देन फर्दर इसको जरूरत ही नहीं है और किसी से रिएक्ट करने की, क्योंकि रिएक्ट क्यों करना था, ताकि बाहर वाली शेल फुली फिल्ड हो सके। अब जब एक बार फुली फिल्ड हो गई तो उसको जरूरत ही नहीं है आगे रिएक्ट करने की। बट दिस इज आफ्टर फॉर्मिंग आयन। बट वी नो सम एटम्स आल्सो लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनकी बाहर वाली शेल फुली फिल्ड होती है। तो इन एटम्स को बाहर वाली शेल कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है। दैट इज व्हाई दे डू नॉट कंबाइन विद एनी अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स और केमिकल स्पीशीज। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू एटम्स हैव फिक्स्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी? हर एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी फिक्स क्यों होती है? हम क्यों कहते हैं कि सोडियम NaCl ही बनाएगा, NaCl2 नहीं बना सकता या Na2Cl नहीं बन सकता? The reason being, this we have discussed in the previous video, in the previous chapter also, that it depends on electronic configuration. हर एटम ने अपनी बाहर वाली शेल कंप्लीट करनी है। ये अपनी बाहर वाली शेल एक इलेक्ट्रॉन देकर कंप्लीट करेगा और ये अपनी बाहर वाली शेल एक इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट करेगा। इसलिए इसके पास एक ही एक्सटेंडेड हैंड है ताकि वो किसी के साथ एसोसिएट कर सके। ऐसे ही ये भी एक ही एटम के साथ एक्सटेंड कर अपने आप को कंप्लीट कर सकता है। दैट इज व्हाई दे कैन बॉन्ड विद ईच अदर और विद एनी अदर एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी फिक्स्ड होगी। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव नोटिस्ड इट कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसकी बाहर वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसके भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं हुए और इसके भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं हुए। इसके बेसिस पर ल्यूइस सेड दैट इफ वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू शो द ट्रांसफरेंस और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then why not to write its electronic configuration of outer shell only? ल्यूइस ने कहा कि अगर हमें सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाने, हमें पता है कि बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, then why there is a need always to write the inner electrons? तो उसके लिए उसने कहा कि अगर हमें सिर्फ यही दिखाना है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं ही क्यों? तो उसने ये तरीका बताया कि एटम के साथ जितने बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट या क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जो ये शो करें कि इसकी बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया विद डॉट एंड हियर द 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन विद क्रॉस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको क्रॉस और इसको डॉट से ही दिखाना है। दीज आर जस्ट द रिप्रेजेंटेशंस कि हमने बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करना है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन शो इट लाइक दिस नाउ कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे लूज कर दिया, तो नाउ इट हैज बिकम Na+। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन and 1 of sodium. Now it has become chloride ion. अब ये मिलकर क्या बन गया? NaCl. So this is the Lewis representation for the atom और ion. अगर ion की रिप्रेजेंट करनी है तो हम ऐसे करेंगे, अगर atom की करनी है तो हम ऐसे करेंगे. So these are the Lewis representations of these atoms or ions. Like we have discussed these questions, we will discuss these next questions in the coming topics in this chapter to understand exactly why this happened, that what is the nature of force which hold the atoms and why molecules have definite shapes. इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है
कि जैसे वाटर इट इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड CO2 इज आल्सो अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, दोनों 3-3 एटम्स के बने हैं, लेकिन हम वाटर की शेप बेंट शेप बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर शेप बनाते हैं. So all these concepts we will discuss in the topics to come, that why is it so that it is having linear structure and it is having bent structure. अब हमने ये डिस्कस किया कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया कि सोडियम इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड क्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. नाउ सोडियम विल डोनेट वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन so that both of them they can have 8 electrons in their outermost shell. ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके. इसके बेसिस पर रूल प्रपोज किया गया, ऑक्टेट रूल बाय ल्यूइस एंड कोसल, दैट एटम्स कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफरेंस और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in order to have octet in their valence shell. कि एटम्स कंबाइन कैसे करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे या इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे. किस लिए, ताकि वो अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दें. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ क्लोरीन ओनली. नाउ वी नो दैट क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. अगर एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सिमिलरली सेकेंड एटम इज आल्सो हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost shell. So both are in need of 1 electron so that they can have octet in their valence shell. So in that case अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसकी शेल इनकम्प्लीट रह जाती, ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर ये इसे दे दो तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. So in that case both of them they share their electrons so that they can satisfy the need of each other. In this way they are sharing their electrons to have octet in their valence shell. So in this way the rule is that atoms combine either by transference of electrons or by sharing of electrons in order to have octet in their valence shell. अब उन एटम्स पर जिनकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, ये रूल उनके लिए एप्लीकेबल था, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स और कुछ ऐसी कंडीशंस पता चली जिनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं था. तब इस रूल की वो लिमिटेशंस बन गई. नाउ व्हाट दोज लिमिटेशंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्टेट मीन्स 8, मीन्स हर एटम अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है. बट व्हाट अबाउट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा एटम उसके साथ कंसीडर करें तो उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. एंड वी नो दैट फर्स्ट शेल कैन कंप्लीट डुप्लेट ओनली, देन हाउ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैन फिट इन द ऑक्टेट रूल. सो दिस वाज द लिमिटेशन कि इसको तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, देन इट इज नॉट ट्राइंग टू हैव ऑक्टेट इन देयर valence shell. So that is why the formation of hydrogen molecule is a limitation to this rule. Coming to the second one, that is incomplete octet of central atom. कुछ ऐसे molecules exist करते हैं जिनमें molecule तो exist करता है लेकिन central atom का octet complete नहीं होता. For example, BeCl2. If we simply write the structure of BeCl2, Be is in the center and Cl on the sides. Now beryllium, we know that its atomic number is 4. It is having 2 electrons in its outermost shell, and chlorine they are having 7 electrons in their outermost shells. In this way chlorine का octet complete हो रहा है इधर भी और इधर भी, लेकिन beryllium इसके बाहर वाली शेल में 1 2 3 4 electrons are there only, but this compound exists. In the same way, if we talk about lithium chloride, LiCl, lithium is having 1 electron in its outermost shell and Cl is having 7 electrons in its outermost shell.
LiCl एग्जिस्ट, लेकिन लिथियम की बाहर वाली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है. So this thing was not explained according to octet rule, that how these molecules are existing in which the octet of central atom is not getting completed. Similarly, we can take the example of BCl3, boron trichloride, या BF3, boron trifluoride. In that case also the octet of central atom is again not complete. Coming to the third one, expanded octet of central atom in the molecules having expanded octet. For example, SF6 and PF5. PF5 means phosphorus is making 5 bonds with 5 fluorine atoms. We know that atomic number of phosphorus is 15 and electron distribution is 285. Means it is having 5 electrons in its outermost shell. Now these 5 electrons, they can form bond with 5 fluorine atoms. And we know that atomic number of fluorine is 9, electron distribution is 2, 7. So each fluorine atom is having 7 electrons in its outermost shell. So each fluorine atom shares one of its electron with phosphorus, and in turn phosphorus shares one of its electron with each fluorine. Now what will happen? Each fluorine will complete its octet by sharing the electron of phosphorus, and phosphorus in turn shares one electron of each fluorine. By doing this, around phosphorus, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने ही थे, 5 इलेक्ट्रॉन 5 फ्लोरीन के शेयर हो गए, तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया. हम ये कहते हैं कि बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें बाहर वाली शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट व्हाई दिस हैपेंस. अब क्योंकि पता चला कि ऐसे मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और कुछ ऐसे जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया. इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज व्हाई दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो 8 होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 8 कंप्लीट ही नहीं हो रहे और इसमें 8 से ज्यादा हो गए. अगर ये 5 है तो ऑब्वियसली सेंट्रल एटम के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अगर SF6 है तो सेंट्रल एटम सल्फर के अराउंड 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इसी तरह IF7 आयोडीन के अराउंड 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. Why this is so, this we will study in the next topics, but till here this was the limitation of octet rule. Coming to the fourth one, odd electron molecule. For this, taking an example of NO, that is nitric oxide. In this case we know that atomic number of nitrogen is 7 and electron distribution is 5, and of oxygen is 8, electron distribution is 2, 6. Now here oxygen के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन 1, 2. This nitrogen is forming bond like this, that oxygen की बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, लेकिन नाइट्रोजन की बाहर वाली शेल में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. Now here the oxygen is having 6 electrons in its outermost shell. So these are the 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons of oxygen. Nitrogen is having 5 electrons in its outermost shell, so it is 1, 2, 3, 4 and 5. So in this way nitric oxide exists, but if we see the number of electrons around nitrogen, they are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And around oxygen it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
this molecule exists, but here are odd number of electrons around nitrogen, which was not explained by octet rule. Coming to the next one, the shape of the molecule. A bit we have discussed earlier also, that why water exists in a bent shape and CO2 exists in a linear shape. This was also not explained by octet rule. Ki no doubt oxygen is completing its octet here like this, and here also 1 2 3 4 5 6. Oxygen is completing its octet 1 2 3 4 5 and 6. Hydrogen is having 1 electron. To complete its octet 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Oxygen is sharing the electrons like this, and hydrogen is completing their duplet here. In the same way, oxygen and carbon, they are completing their octet. But why the shape of water is bent and why the shape of CO2 is linear? This was not explained on the basis of this, along with the stability of the molecule, that why molecules are stable. So these two concepts were not explained by octet rule. Coming to the next one, compounds of some noble gases, they are also available, like XeF2, XeF4, XeF6. Xenon is a noble gas. अब हम कहते हैं कि हर एटम नोबल गैस की कन्फिग्रेशन एक्वायर करने की कोशिश करता है, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल हैं. क्यों स्टेबल हैं? क्योंकि उनकी बाहर वाली शेल कंप्लीट है, इसलिए वो रिएक्ट करके बॉन्ड नहीं बनाती. But later on, when they come to know about the compounds of noble gases also, so that becomes a limitation of octet rule, that how noble gases, they are capable of forming compounds. So these were the limitations which the octet rule was not able to explain. Thank you.